Hello, everyone. A very logical day to all of you. And let's see what we have here today in the editorial discussion of 7th June. Two alarm bells. एक ही काफी होती है अलार्म, पर यहाँ पे टू हैं. Let us see क्या है इसमें. First, those who have not heard this. So this is the reading part, first one. Second, we'll be working on the main idea and on the vocabulary discussion, coming up with the main words which we do not need to refer to when we are reading. So we'll be able to understand the main idea of the passage without referring to the dictionary. This is what you need to do. ठीक है, डिक्शनरी रखना ही नहीं है हमें बिल्कुल अपने पास. हमें सिर्फ पैसेज पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है और उसका मेन आइडिया निकालना है. ये हमारा पहला काम है. So the victory of two independents in Punjab has raised concerns. Waris Punjabi Chief Amritpal Singh, incarcerated in Dibrugarh jail under the National Security Act, won the Lok Sabha seat of Khadur Sahib. Sarabjit Singh Khalsa, the elder son of Beant Singh, assassin of Prime Minister Indira Gandhi, secured the Faridkot seat after 3 unsuccessful attempts. So this is showing that, see, there are two people who have won the constituency seats, and this is a cause of concern. It may not be incidental that the victories came in an election in which long-term allies Shiromani Akali Dal and Bharatiya Janata Party contested separately. इसका मतलब पहले ये दोनों साथ में थे, अभी इस बार अलग-अलग हुए for the first time in decades. In its best version, the BJP-SAD alliance was seen as a guarantor of communal harmony. मतलब जब दोनों साथ में थे तो ऐसे राइट्स या ऐसी चीजें नहीं होती थी, कम्युनल हार्मनी होता था. अब नहीं है. अब क्यों नहीं है ऐसा? दे एक्सपीरियंस प्रोट्रैक्टेड मिलिटेंसी इन द 1980s. ठीक है, बॉर्डर स्टेट दैट एक्सपीरियंस्ड प्रोट्रैक्टेड इज एक्सटेंडेड. राइट, अगर हमें नहीं भी मीनिंग चाहिए तो भी कोई बात नहीं है, no problem. What is understood from this paragraph is that these are two people who have won the elections. It is a cause of concern, and the reason possibly that these two have separated. Right? When they were together, then there was communal harmony, and now there is this problem. So this is the result of these two going or separating or severing ties. Now, for years, the Akalis provided a moderating influence in the पैंथिक स्पेस. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लोगों को थोड़ा सा शांत रखना, एवरेज रहना. But the credibility suffered after the incidents of sacrilege that dragged the state in 2015. Sacrilege means to go against something that is religious. ठीक है. Now, it eroded further during the farm agitation, which also became the trigger for the SAD breaking the alliance with the BJP, leading to a vacuum that actors like Amritpal are now trying to fill. ठीक है, अब देखो ये एक्टर्स हो गए. क्यों? क्योंकि हुआ क्या, अब ऑथर ने अभी तक क्या समझाया कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों पहले मिले हुए थे. जब मिले हुए थे, दैट मीन्स कंबाइंड एफर्ट्स थे उनके, तो पंजाब में शांति थी. लेकिन अब क्या हुआ, अब दोनों अलग हो गए. फिर यहाँ पे उसने रीजन बताया कि अलग क्यों हुए वो. इससे बेनिफिट किसे हुआ? अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को बेनिफिट हो गया. पहले भी हम देख रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए भी जीत गए. तो मतलब this is a cause of concern. That is what the author is getting to. Now, while Sarabjit may have been benefited from the focus on Operation Blue Star due to its 40th anniversary this year, an anti-incumbency against the ruling Aam Aadmi Party. Anti-incumbency हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो लोग इसके खिलाफ थे, तो हो सकता है इसी वजह से सरबजीत जीत गए हों. पर his win also points to Punjab's unresolved issues. जीते तो हैं, लेकिन इश्यूज क्या है और जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए. सो द SYL रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट which sparked the Dharam Youth Morcha in the 1980s, taken over by the militant ideologue Jarnail Singh Bhindranwale, justice for victims of the 1984 killings, remission for Sikh political prisoners who have been in jail for over 3 decades, and the continuing menace of drugs are issues. देखो, अब यहां से यहां तक, यहां इसने बोला अनरिजॉल्व इश्यूज है और यहां पर वापस इश्यूज आए. दैट मीन्स
These are the problems, these are the issues that are faced by Punjab. Right. Now, they continue to fester. Containing menace of the drugs are issues that continue to fester, means create a problem and provide fodder to forces. फॉडर का मतलब होता है फूड, तो फूड टू फोर्सेस इनिमिकल टू पीस, मतलब पीस के जो खिलाफ है, पीस के लिए जो डेंजर बने हुए हैं, उन्हीं चीजों को ये वापस से ये इश्यूज मतलब ये उनको भड़का देती है। अब ये आसान से समझो कि देखो ये दो लोग जो जीते हैं इनका रीजन क्या है, एक शिरोमणि दल, अकाली दल और बीजेपी अलग अलग हो गए, उसके रीजंस दिए हैं उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दिया कि हो सकता है ये सरबजीत जी इसलिए जीते हो क्योंकि 40th एनिवर्सरी है इसकी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि कई सारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, तो इश्यूज कौन से हैं, ये रहा। एक, militant ideologue Jarnail Singh Bindrawale, justice for victims of the 1984 killings, remission for Sikh political prisoners। तो justice होना चाहिए 1984 killings के लिए। जो सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इतने सालों से, 30 सालों से जो जेल में है, उन्हें रिहा कर दिया जाए, ये होता है रेमिशन का मीनिंग, ठीक है। एंड द कंटिन्यूइंग मीनेस ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का प्रॉब्लम तो है ही सही, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जो कंटिन्यू टू फेस्टर मतलब परेशान करे हुए हैं, इरिटेटेड, फेस्टर इज टू नैग, टू इरिटेट समबडी, लाइक क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑलवेज। तो जैसे कोई वूंड होता है वैसे फेस्टरिंग वूंड हो जाता है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, ऊजिंग आउट होता है। टू फेस्टर एंड प्रोवाइड फॉडर, तो अब ये फॉडर प्रोवाइड कर रहे हैं किसे, ऐसे फोर्सेस को जो पीस के लिए नुकसानदायक हैं, जो हमारी शांति के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो होते हैं इनिमिकल टू पीस इन द स्टेट। Now, Amritpal, with his diatribe against drugs and an unjust Indian state, is also capitalizing on these issues. Capitalizing का मतलब होता है कि वो इन चीजों का एडवांटेज ले रहे हैं, तो ये जो इश्यूज हैं इसकी वजह से उसे एडवांटेज मिलते जा रहे हैं। ऑल्दो मेनी स्टेट लीडर्स आर ओपनली सस्पिशियस अबाउट हिज एंटीसीडेंट्स, ठीक है, ओपनली सस्पिशियस हैं कि ये हैं क्या, ये इसके पहले क्या थे ये। बोथ द अकालीज एंड द कांग्रेस हैव कॉल्ड हिम अ प्लांट टू डिस्टेबलाइज द स्टेट, मतलब ये आए कहां से हैं, ये कर क्या रहे हैं, तो कांग्रेस हो या अकालीज हो, दोनों को ये शक है, सस्पिशन यानी शक है क्या, कि ये एक प्लांट है, मतलब देयर इज समबडी एल्स हु हैज प्लांटेड हिम देयर एंड दैट इज हाउ ही इज वर्किंग, so that means he is being controlled by somebody, so he is just a puppet, so he is a plant। जब कभी ना स्पाई मूवीज या स्पाई नॉवेल्स पढ़ते हो तुम, अगर पढ़ी हैं तो उसमें ये प्लांट्स आता है ना, हु हैज बीन प्लांटेड वेयर, ऐसा आता है। सो ही इज अ प्लांट टू डिस्टेबलाइज द स्टेट, तो स्टेट में स्टेबिलिटी को खराब कर देना, स्टेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, स्टेट में प्रॉब्लम्स या इश्यूज का रिजॉल्व नहीं होने देना, ये सारी चीजें वो जान करके कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द पीपल आर सस्पेक्टिंग हिम ऑफ। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू पोल विंस, अब क्या होगा, will depend on how they are handled by both the center and the state government। ये दो लोग जीते तो हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, कितना रहेगा, किस पर रहेगा, ये कैसे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज हैंडलिंग दीज पीपल। सेकेंड, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दीज पीपल। All political parties with a stake in the state should learn from mistakes of the recent past। ये ऑथर ने कहा कि देखो क्या सीखना है हमें, कुछ तो सीखना है, लेसन टू बी लर्न्ड। ये क्या होगा कि देखो क्या हो रहा है स्टेट में, और जिसकी वजह से ये दो ऐसे लोग आ गए हैं गवर्नमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं या क्रिएट कर सकते हैं। इट वुड बी अ ग्रेव एरर, ग्रेव इज वेरी सीरियस, तो सीरियस एरर होगा क्या, टू यूज दीज विक्ट्रीज टू पोलराइज द स्टेट फॉर इलेक्टोरल गेन। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इन विक्ट्रीज को लेकर, ये दो लोग जो जीते हैं इन्हें लेकर अगर स्टेट में ही डिवाइड लेके आ जाएंगे, डिवाइड पोलराइज का मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल,
तो इसे पोलराइज कहते हैं कि अलग अलग हो गए। तो अगर स्टेट में ऐसा वो डिवीजन चाहते हैं या लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। दिस इज व्हाट द ऑथर इज गेटिंग टू। राइट नाउ व्हाट पंजाब नीड्स मोस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी अब पंजाब के लिए क्या है? यूनिटी एंड रिजॉल्व टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस। जो हमने अभी इसके पिछले स्लाइड में किया था ना कि इतने सारे इश्यूज हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं। तो इलेक्टोरल गेन के लिए, अगर पॉलिटिकल गेन के लिए लोग इस पंजाब जैसे स्टेट को डिवाइड करने पे तुले हुए हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। व्हाट पंजाब नाउ नीड्स इज one, it has to maintain the peace, unity, and second, addressing those problems which are still unresolved. तो इतने सारे इश्यूज हैं तो उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाएगा। The border state with a bleeding economy in the throes of an agrarian crisis can ill afford another upheaval. अब ऑथर ने बड़ा ध्यान से बोला है, देखो एक तो ये बॉर्डर स्टेट है, ठीक है। अब बॉर्डर स्टेट पे अगर ये लोग इकोनॉमी अगर सही नहीं चलेगी तो पीपल आर गोइंग टू गो हेवायर, राइट, परेशान हो जाएंगे वो। परेशानी के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बॉर्डर स्टेट है, इकोनॉमी ब्लीडिंग है, मतलब नॉट वर्किंग वेल, एंड इन द थ्रोज ऑफ एन अग्रेरियन क्राइसिस, एग्रीकल्चर में भी क्राइसिस है। तो ये भी सामना कर रहे हैं पंजाब के वासी। एंड नाउ दे कैन इल अफोर्ड अनदर अपहीवल। अगर बहुत उथल पुथल हो गई तो अब यू कांट अफोर्ड इट, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। पंजाब में अभी जो हुआ, ये जो दो आए हैं तो ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को समझदारी से इस स्टेट को हैंडल करना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। दिस इज व्हाट दे हैव टू डू नाउ। So they have to be united. They have to resolve those issues, right? Otherwise, it is going to be a problem because this border state is facing problems. Now, while focusing on these two wins and what they could mean, however, it is important to note that the polls also saw the defeat of one of the original hardliners, Simranjit Singh Mann, the Shiromani Akala Dal Amritsar chief who won his first election while in jail in 1989. ये जब जेल में थे 1989 में, तब ये जीते थे अपना इलेक्शन, ठीक है। यहां पर अब इनकी हार हुई है। दिस इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जीत किसकी हुई है, उन दो लोगों की, और हार किसकी हुई है, ये जो पहले जीतते थे। So this is the turn of events. This is the upheaval. So you have to be very careful, according to the author, in treating these people now, in handling these people now who are there from their winning from their constituencies, right? So election victories of hardliners from Khadur Sahib and Faridkot point to need for vigilance. That means you have to be very careful by mainstream parties in Punjab. Okay, I hope you have understood this now. Let's go to the word section now. And yes, the word section is a wow because now you have to work on your words. So once you read the article, हमें समझ में आ जाता है कि इसका मेन आइडिया क्या है। अब हम जाके थोड़ा सा इन डिटेल या स्क्रूटिनाइज करेंगे हम थोड़ा इसको, तो वर्ड्स को हैंडल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड सबसे बढ़िया एक आ जाता है इनकार्सिरेटेड। लेकिन जब हमने पढ़ रहे थे वो, तो हमें इनकार्सिरेटेड का मीनिंग आता नहीं था। दूसरा, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकार्सिरेटेड बिकॉज एज आई टेल यू that you don't need to get stuck on any difficult word. Why? Because this difficult word will some way or the other give you an easy simplified version of it, and you can understand this, that this person was still in jail. तो ही वॉज डैश इन डिब्रूगढ़ जेल। तो जेल में क्या होगा, वो बंदी होंगे। तो जेल में बंदी होना इज इनकार्सिरेटेड, दैट मीन्स यू आर इन गेल। इसके लिए एक और वर्ड है GAOL, और दूसरा इम्प्रिजन। तो when you are in the prison, that means you are imprisoned, right? तो this was okay, fine। बाकी इतने कोई difficult words है नहीं। Protracted का I gave you the meaning, right? Elongated, extended, then credibility, they are losing their credibility। तो cred का मतलब होता है belief। तो उन्होंने अपनी credibility खो दी। अब बीजेपी को
ये अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल पार्टी जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने 2-3 चीजें की थी। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ सैक्रिलेज हुआ था एंड प्रॉब्लम्स भी कहाँ पे हुई थी? उसने कहा था कि अग्रेरियन प्रॉब्लम था, फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट था। तो इन चीजों की वजह से क्रेडिबिलिटी वो धीरे धीरे खोते गए थे और बीजेपी अलग हो गया और एससीजी अलग हो गया। फिर स्पार्क यानी इंक्रीज करना, या स्पार्क करना मतलब टू ट्रिगर समथिंग, टू इंक्रीज, एक्टिवेट समथिंग। एक्चुअली स्पार्क कैसा पैदा होता है वैसे, तो इट्स स्पार्क्ड वेरी हीटेड डिबेट, तो चिंगारी जैसे होती है ना वो। ठीक है, और मिलिटेंट आइडियोलॉग इज योर वे ऑफ थिंकिंग। रेमिशन हमने यहाँ से समझ लिया था कि उनको माफ कर दो, उनको जाने दो, लेट देम, सेंड देम बैक। Pester is to create a problem. In that sentence, it's something that is nagging you or irritating you. तो यहाँ पे फेस्टर एक्चुअली वो वूंड होता है, जब छोटा छोटा धीरे धीरे कुछ ना कुछ कचरा निकलता है, दैट इज ओजिंग आउट। सो दिस इज फ्रॉम अ वूंड, अदरवाइज इट इज nagging or pricking you, nagging you, irritating you. Fodder is food, right? Now, this is against drugs, inimical is harmful, right? एंटीसीडेंट्स हमने कर लिया था कि इसके पहले कौन होगा या इसके साथ कौन है, ये देखते हैं। पार्टीज विद अ स्टेक का मतलब होता है कि जिनमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट दांव पे लगा हुआ है। क्या दांव पे लगा हुआ है वो? पोलराइज, दोनों को अलग अलग कर देना, डिवाइड करना। ग्रेव इज अ वेरी सीरियस मैटर, आई गेव यू इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो। ब्लीडिंग इकोनॉमी ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड, सच एन इकोनॉमी जो खून के आंसू रिला देती है, वैसा वाला होगा। इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो इस स्टेट की इकोनॉमी इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन, in a miserable condition, so it will be called a bleeding economy, right? Come on, let's come to the second one now. So united they thrived, this is again from the Hindu. थ्राइव का मतलब होता है टू ग्रो वेल, प्रॉस्पर, पर यूनाइटेड होंगे तो ही होंगे। सो एंटी इनकम्बेंसी इन इंडियन स्टेट असेंबली इलेक्शंस इज नॉट रेयर. Governments with strong majorities can lose at the end of a term due to changed expectations from the electorate. Thus, the loss in Andhra Pradesh to the Grand Alliance of the Telugu Desam Party and Jan Seva Party, Bharatiya Janata Party, should come as no surprise. Yet, the scale of the defeat, this party could only win 11 seats, a fall of 140 from 2019 elections in the 175 constituencies in the 2024 assembly polls is astounding. The scale is astounding. Now, in vote share terms, it suffered a 10 percentage point drop, but still landed a respectable 39.37% tally. But the TDP-led alliance did much better with a collective vote share of 55.3%, an increase of 9.75 points from 2019, and roughly the same as a drop in this share. This allowed it to garner a lion's share of the seats, 164 out of 175. It is quite clear that the TDP JSP alliance allowed both parties to thrive. It helped them stitch up cumulative support from the Kama and Kapu communities that form the bases and also compete against this. ठीक है, अब हमारे पास जो भी डेटा दिया है, जो कुछ भी दिया है, the only thing that you can understand is this increase, this fall in the number of seats that they have got is only that they were together, there was an alliance which won, and there's anti-incumbency that is very normal in the, it is not rare means होता रहता है ये गवर्नमेंट में, strong majorities can lose. By roping in the BJP, the alliance managed to also make the election bipolar race. अब आ गया इनके इसमें कॉम्बिनेशन में बीजेपी. द कांग्रेस हैज येट टू रिकवर फ्रॉम इट्स डेसिमेशन. डेसिमेशन का मतलब तो पूरी तरीके से खत्म हो जाना, तो अभी उसे रिकवर होना है आफ्टर द स्टेट बाइफर्केशन and make the best use of the first past the post system that can follow the parties coalitions to get a disproportionately higher number of seats on the basis of a decent lead in terms of vote share. अब इससे ये समझ में आ जाएगा दैट डेसिमेशन हुआ पूरी तरीके से कांग्रेस उस स्टेट में
खत्म हुई जब वो स्टेट का बाइफर्केशन हुआ, ठीक है। एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो पहले जाएगा वो ऐसा सिस्टम, पास द पोस्ट, जिसने क्रॉस किया वो जीत गया, वैसा वाला कुछ। इट कैन अलाउ द पार्टीज एंड coalitions to get a disproportionately higher number of seats on the basis of a decent lead in terms of the vote share. But the electoral system and the mere presence of a competitive alliance alone would not explain this loss. इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है, इसकी वजह से हार हुई है, या हमारे सामने जो हमारा अलायंस हमारी कंपटीशन में था इसकी वजह से हार हुई है, ये इससे ये लॉस जो है, यू कांट एक्सप्लेन इट व्हाई दिस पार्टी लॉस्ट. Now the Jagan Mohan Reddy led government pumped in money into welfare schemes despite ballooning debt and fiscal health issues. Right? They pumped in means they put in so much money. तो इनका जो प्रॉब्लम था, the ballooning is swelling, growing. बलून जैसे बढ़ जाना, राइट? तो इंक्रीजिंग, बलूनिंग, एक्सटेंडिंग, एक्सपैंडिंग, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्कीम से पैसा डाल दिया डिस्पाइट द डेट एंड फिस्कल वेल्थ इश्यूज, फिस्कल हेल्थ इश्यूज। इसका मतलब डेट में ऑलरेडी थे, फिस्कल हेल्थ भी मतलब फाइनेंसेस भी बहुत सही नहीं थे, उसके बाद भी और पैसा वो पंप इन करते गए. And they focused on a targeted delivery of subsidies and benefits. But Andhra Pradesh record on the growth and development front has left much to be desired. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पे या तौर पे या उस लेवल पे अभी बहुत कुछ मिलना करना बाकी है. Since its bifurcation again, जब ये अलग अलग हो गए दोनों स्टेट्स, तेलंगाना has emerged with the highest per capita income, क्योंकि तेलंगाना साइड में आ जाते हैं पूरा अपना सॉफ्टवेयर among major states, while Andhra Pradesh is ranked 10th, even though the government hiked capex spending in the first quarter of financial year 24, it was the worst performer in financial year 23. Other unresolved issues, ठीक है। अब ये बता रहे हैं बाइफर्केशन के बाद आंध्र प्रदेश की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तेलंगाना की बेटर हुई है, ठीक है। Such as capital of the new state also resulted in a perception among voters about the inadequacy of this government to focus on jobs and development as opposed to its generous spending on welfare, development as opposed to its generous spending on welfare, ठीक है। That means इनका जो कैपिटल था हैदराबाद वो भी शिफ्ट हो गया तो प्रॉब्लम आ गई इस गवर्नमेंट पे, लोग सोचने लगे कि ये गवर्नमेंट इनएडिकेट है, ठीक है. Now, Mr. Naidu's incarceration. See, you are coming up with this word again. We just did it in the Indian Express editorial. Incarceration मतलब जेल में होना. So, Mr. Naidu's incarceration because of a purported scam increased empathy for the TDP. Empathy also we have just recently done this word in a few classes. तो empathy का मतलब होता है लोगों ने समझना शुरू किया उनको कि मिस्टर नायडू हैं तो जेल में, लेकिन allegedly एक scam में फंसे हुए हैं. But then the people understood, it increased the empathy. It is now imperative for the new government to eschew the traditional politics of vendetta. Vendetta यानी revenge. तो अब उस revenge वाली politics को छोड़ें and work towards the state's development. तो अब ये मिल गया है स्टेट अपने हाथ में, तो अब उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए. Mr. Naidu has a great opportunity. After all, his party is now indispensable in the new NDA government in New Delhi. तो अब वो अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि नाउ इफ ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ही शुड बी डूइंग कमिंग अप विद द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, एंड this is an opportunity that has fallen in his lap. So, main idea, formidable alliance helped the TDP-led coalition win in Andhra Pradesh. यही था. Formidable का मतलब होता है something that is unapproachable, something that is very strong, intimidating कर सकते हैं, ठीक है. अलग अलग यूज में ये वर्ड आ जाएगा. स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल किले के जैसे हैं, राइट. और कहीं पे इसका यूज आ जाएगा थ्रेटनिंग के हिसाब से, कहीं पे यूज आ जाएगा अनअप्रोचेबल के हिसाब से, कहीं पे आ जाएगा इसका यूज इंटिमिडेटिंग के हिसाब से, ठीक है. डर पैदा करना, टू कॉज फियर.
वो हो जाएगा फॉर्मिडेबल या इंटिमिडेटिंग. So, coming to the vocabulary part here again, let us see what we have. Anti-incumbency, we have now read it many times, so we know whether people are against the government, elected government. Astounding is like amazing. Ghana is to muster or collect. तो क्या मिलेगा इन्हें? लायन शेयर, और लायन शेयर हम मीडियम्स में कर चुके हैं. टू गेट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ समथिंग, टू गेट अ लायन शेयर. तो लायन है ना, कभी भी वो छोटे हिस्से के लिए राजी नहीं होगा, उसे एक बड़ा हिस्सा चाहिए होता है. तो लायन शेयर का मतलब होता है प्रॉफिट में से एक बड़ा हिस्सा. स्टिचअप यानी पैचअप कर लेना, तो क्यूमुलेटिव सपोर्ट उनको मिलना चाहिए. तो स्टिचअप यानी पैचअप और टेक टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर, कुछ भी कर लो. तो आपके जितने डिफरेंसेस हैं वो आयन आउट कर लेना है. ठीक है. रोपिंग इन मीन्स ब्रिंगिंग इट इन. Bifurcation is division. Pumped in is to put in, inject. जैसे हम कई बार इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इंजेक्ट लिक्विडिटी होता है, इंजेक्ट द फंड्स होता है. वैसे ये है पम्प्ड इन मनी, सेम थिंग, राइट. बलूनिंग इज स्वेलिंग, आई गेव यू इन द प्रीवियस स्लाइड. इनकार्सिरेशन यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, आई हैव गिवन यू ऑलरेडी. परपेट्रेट स्कैम यानी जो कहा गया है, ऐसे माना गया है, सिर्फ उस तरीके से एलिजिडली जो होता है वो. Imperative is something that is very necessary. Vendetta is revenge. Again, I have written this also. And government to eschew the traditional politics of vendetta. Eschew is to leave it or go away from it. उसे deviate करना. तो वहां से हटके हमें actually कुछ काम करना चाहिए अभी इस state की development की तरफ. Right? I hope that's all. I hope you will be able to understand this. And yes, continue with your reading and stay logical and keep seeing such editorials discussion ahead also. Thank you and all the best.